Ladies and gentlemen, a very good evening. Tomorrow by this time, we will know who is making the next Sarkar in Delhi. Who really is leading that charge when it comes to the big 2024 battle. And on the very eve of the result day, the Samajwadi Party chief, Akhilesh Yadav, seems to have outed India's agenda. Now, this is the India Alliance's agenda. He was addressing a press conference earlier in Lucknow. Akhilesh Yadav is not just criticizing the Modi government for misusing agencies, like it says the Enforcement Directorate, the CBI have been done. He also says that the government presented wrong data to mislead the Janta on India's development story. In fact, in the same breath, he goes on to say, and allow me to quote verbatim, he says, Janta is baar Gandhi ji ko yaad karke aandolit ho gayi hai. These are Akhilesh Yadav's words. He says, Janta is desh ke liye balidan dene ko tayar hai. देश का युवा ही से सर पे कफन बांधकर ये कह रहा है कि मेरा रंग दे बसंती चोला. So critically, there is an attempt right now to incite the voter. Why is Akhilesh Yadav actually doing this? No one knows. But look at the kind of words that he is using. Andolit, he says balidan, sar par kafan. And all this, many would say, is to essentially send a message to his supporters. And both the timing and the messaging clearly has triggered a huge storm. Listen in quickly. First up, to what we've got so far. ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया. झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला. व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया. इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है. जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है. देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला. And a lot of people have been asking, and a lot of you also, in fact, that why is Akhilesh Yadav speaking in a tone and tenor like this? Does this betray his nervousness? Is there a larger plan? And clearly you would recall that it's not just Akhilesh, but a large part of the India Alliance right from day one. More so, ever since the exit poll results have been out, they've been trying to say that we will not accept the results, as if they've preempted a defeat here. Now, Akhilesh's Andolan, Balidan and Kafan statement clearly has triggered a huge political row. We've got a response from the Uttar Pradesh Minister, Danish Azad, who says that this is a reflection of the India bloc's hopelessness. विपक्ष की समाजवादी पार्टी के ऐसे बयान ये साफ दर्शाते हैं उनकी हताशा को, उनकी निराशा को. जनता का जो मत है, जनता का जो फैसला है, उसको स्वीकार करने में विपक्ष को इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? जब विपक्ष सत्ता में था, यही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी केंद्र में, यही समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, तब तो उन्हें जनता की याद नहीं आई, तब तो उन्हें देश की विकास की याद नहीं आई, तब तो उन्हें गांधी जी की याद नहीं आई, तब तो उत्तर प्रदेश को और देश को उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलने का काम किया. आज जब जनता ने मोदी जी को अपना मैंडेट दिया है, मोदी जी पे अपना विश्वास जताया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट दिया है, तो इस बात से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 4 तारीख है, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. And we also have a lot of responses that have come in from the India Alliance leaders. Interesting is this response from the CPI, where the CPI is backing what you've heard from Akhilesh Yadav. In fact, they say that people know that democracy is under threat. Do remember again, this is a narrative that the entire alliance has built up for the last many, many weeks. But ultimately, when you have the voters who've decided, ultimately when you'll have the results coming in tomorrow, such kind of comments, are they warranted, unwarranted? Quickly listen in to how the CPI has responded to this. Now, to save democracy, the people have to fight. Under BJP, under RSS, which is a fascist organization, the people know that the democracy is under threat. So Akhilesh is right. People have to fight in defense of democracy. All right, so the CPI there obviously not finding anything wrong in how Akhilesh Yadav, possibly what many are saying, is trying to provoke
to incite people ahead of the counting day tomorrow. Let's make more sense of this important comment and why this has been made, the timing. We have Charu Pragya, the BJP spokesperson, joining us. Also, we'll have Kapish Srivastava ji, the SP national spokesperson, both of them on our screens now. And Charu, before I come to you, Kapish ji, आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये अखिलेश यादव बलिदान की बात क्यों कर रहे हैं, सर पर कफन बांधना, इन सब का क्या मतलब है? सर, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी गई हैं, जिस तरीके से इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से आह्वान किया गया है कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए ताकि हम संविधान के तमाम ऐसे प्रावधान बदल सके जिससे कि पिछड़े और दलित और शोषित वंचितों को ताकत दी जाए। आप यकीन माने कि एक घोषित इमरजेंसी एक समय में चली थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। उस समय दिनकर जी ने जयप्रकाश जी के लिए जो चीजें कही थी, आज वो अखिलेश जी पर लागू हो रही हैं कि अखिलेश का बिगुल बजा जाग उठी तरुणाई है, चलो उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई। आज जो वोटिंग हुई है वो निश्चित तौर पर हर एक युवक अपने बेरोजगारी के खिलाफ सर पर कफन बांध करके किया है। नहीं, तो कपिश जी, ऐसे में देखिए दो बातें आती है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमें कॉल करके न्यूज रूम में ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान क्यों दिया है। या तो आप मुझे ये बताइए कि आप इन युवा, बेरोजगार, जो भी आप कहते हैं कि असली में ये मुद्दे हैं और लोगों ने इन मुद्दों पर ही वोट दिया है, तो यानी कि कल वो इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखेगा, इट विल बी क्लियरली विजिबल। तो ऐसे में ये बोलना कि आंदोलन करने का समय आ गया है, सड़कों पर जनता उतरेगी, इसका क्या मतलब है? क्या आप लोगों को भड़काना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उसका कारण यह है कि जब आप एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, वो शायद अब निष्पक्ष नहीं दिखती। नहीं, ये आपको लगता है ना सर, ये आपको लगता है। दिक्कत वही है कि ये एक समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की बात है, लेकिन देश में चुनाव आयोग है सर, चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी देश के अंदर था जिसने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में न्यायमूर्ति स्वयं रहेंगे। तो आखिर कानून बनाकर उनको हटाने की बात क्यों की गई? क्या आप नहीं, अब ये बातें देखिए कपिश जी, अच्छा है कि बात खुलकर हो जाए। एंड इससे पहले मैं चारू को इस कॉन्वर्सेशन में लाऊं। कपिश जी देखिए, ये वही मुद्दे हैं जो पूरा अलायंस बहुत समय से उठा रहा था सर। आपने तमाम ये मुद्दे उठाए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, हम उसमें ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता की आपने बात की, लेकिन जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के इस तरह के आरोप लगाने का मतलब क्या है? अगर आप हर सेकंड मुझे टोकती जाएंगी तो मैं अपनी बात नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ सर। जरूरी है कि बात में क्लैरिटी हो जाए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि जब स्वयं सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि मुख्य न्यायमूर्ति इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में हो ताकि यस मैन की नियुक्ति ना होने पाए, तो 2-1 से इन्होंने प्रावधान क्यों किया? तो सबसे बड़ी बात तो यही खड़ी हो गई कि पारदर्शिता का भंग वहीं कर दिया गया और बाकायदा कानून बना करके किया गया। जहां तक आप जो है चंदे के धंधे का इस्तेमाल का कर रही हैं, वो आप सामने एसबीआई को जब फटकार लगी और गैर संवैधानिक। कपिश जी, लोग कह रहे हैं कि शायद अखिलेश यादव ने भाप लिया है कि उनकी हार होने वाली है, और कई पोल्स तो ये भी कहते हैं कि शायद वो अपनी सीट भी हार जाए। लेकिन रुकिएगा कपिश जी, इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें। मैं चारू को भी इस कॉन्वर्सेशन में लाती हूँ। आपने बहुत सारे आरोप उठाए हैं। So Charu, why are you blaming the INDA alliance? Why are you saying that this is an alliance trying to provoke? They say that no one trusts the election commission because all of them, whether it's the enforcement directorate, the CBI, the election commission, are all handmaidens of the government. That is their allegation. Diti, just allow me to say all these 3 points because they're all 3 very important. Akhilesh Yadav, who's crying foul today, has lost election after election. It's a record. He lost in 2014, he lost in 2017, he lost in 2019, he lost in 2022, and he's all set to lose again in 2024. So this is not the first time he's losing an election. He is on a back foot, and I think now he wants to just instigate people into lashing out. See, at the end of the day, he needs to remember that even in 2019, more than 50% of the constituencies that Bharatiya Janata Party won, it won with the mandate of more than 50% of the vote share.
Now that is a fact. The rising popularity of our Prime Minister Narendra Modi ji is visible for everyone. All you have to do is listen to the testimonials of the people who are going out to vote. Now here, most importantly, all of India Alliance has tried to float this narrative at various stages of this election, time and time again. Not just this election, even in the 5 state elections. They didn't cry foul when Congress won Telangana. What was your complaint then? Now, my last thing here, कपीश जी, चारू को अपना पॉइंट खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अखिलेश जी अपनी हार पहले से ही मान चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 35 सीट जीतेंगे। अगले दिन तक वो 25 सीट पर आ गए। आज वो दूसरा रोना रो रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी कांग्रेस के साथी, यू आर रेजिंग फिंगर्स एट इंडियाज ब्यूरोक्रेसी एज वेल। यू आर सेइंग 150 DMs वर रीच्ड आउट टू टेल अस द नेम्स। ओके कपीश जी, नाम बताइए। देखिए आसान होता है ना सर, टेलीविजन पर आकर, कैमरा पे आकर आरोप दे देना, लेकिन जनता तो ये पूछेगी ना आपसे कि इसका तथ्य दिखाइए, प्रूफ कहाँ है? चुनाव हार के बैठे हो आप 5 जनता ने इनसे पूछा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में आपने मुख्य न्यायमूर्ति को क्यों नहीं शामिल किया। जनता तो ये भी पूछ रही थी, इनसे उत्तर ले लीजिए। और मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, जनता तो ये भी पूछ रही है इलेक्शन कमिश्नर से कि 8 दिन से 9 दिन आपको फाइनल टैली जारी करने में क्यों लगता है, जबकि जो है फॉर्म 17C पे वो चीजें रात के 8 ही बजे उपलब्ध हो जाती हैं। ये भी तो जनता पूछ रही है ना, ये बताने नहीं तो कपीश जी, अगर आपको लगता है कि जनता ये पूछ रही है और इसका जवाब नहीं मिल रहा, तो यानी तो जनता तो आपके साथ वोट देगी ना, तो ऐसे में लोगों को भड़काने का क्या मतलब है? नहीं, आप मुझे ये बता दें कि जो जनता वोट दे चुकी, उसके 8 से 9% वोट, 6%, 7% वोट फाइनल टैली में बढ़ कैसे जा रहे हैं? ये कैसे बढ़ रही है? मिरेकल कैसे हो रहा है? चारू, अभी तक 5वीं टैली के बाद चारू 6वीं और 7वीं टैली जारी नहीं हुई है। 6वीं और 7वीं टैली की अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, अब चारू जवाब देती है सर, सुनिएगा। और ये एग्जिट पोल कैसे आ जा रहे हैं? यहाँ पर तुरंत दिखा दे। सबकी गलती है, पर इनकी नाकामी की कोई गलती नहीं है। वो नाकामी जो 5 बार सिद्ध हो चुकी है 5 चुनाव हारने पर। लेकिन अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, या तो आप बोले कि न्याय व्यवस्था पे आपका भरोसा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला आपको लगता है आपके हिसाब से आया है तो आप बोलते हैं वाह वाह। दूसरी बार आपको लगता है कोई फैसला आपके हिसाब का आया नहीं है तो आप उंगलियां उठाते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आखिरी बात ये है कि जिस फॉर्म 17 की आप बात कर रहे हैं, वो आज तक आजादी से लेकर आज तक कभी भी पब्लिक नहीं हुआ है। आज ऐसा क्या हो गया कि जो काम कभी भी नहीं हुआ वो अब करवाना आप चाहते हैं? ठीक है, बट चारू, डोंट यू थिंक दैट्स अ वैलिड कंसर्न? The opposition says that why is the data not being released in real time? Now quickly you respond to that, or you believe that that is something that the election commission should clear, and then I'll give the final word to Kapish ji. Charu first. So I have 2 points here. One, the Supreme Court thinks that this should be heard a little later. Should we not be honoring that? Secondly, the Election Commission has done a press conference and explained that it takes time to get data from the last booth, collate it, put it together and put it out. Another thing is the form that they're asking to be released, Form 17 has never been released. ठीक है, कपीश जी आपकी बात नहीं मान रहे। आखिरी 30 सेकंड्स हैं। कपीश जी मुझे ये बताइए कि कल जो भी नतीजा आता है सर, जो भी रिजल्ट आता है, क्या आप लोग उस रिजल्ट को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? पहली बात तो ये 30 सेकंड्स है सर। हाँ, पहली बात तो ये कि ये सरासर झूठ बोल रही है। फॉर्म 17C 8 बजे तक रिलीज हो जाता है और मशीन जमा करने से पहले 6 प्रति में बनता है। ठीक है कपीश जी, 17C पे नहीं पूछा मैंने आपसे, एक क्योंकि समय की कमी है सर, मैंने आपसे ये पूछा है जो भी कल नतीजा आता है क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं ये सीधा पूछ रहा हूँ कि 6 से 7% जो वोट बढ़ाया गया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 से 30,000 की तो पोलिंग इन्होंने बढ़ा दी है। झूठ बोलने से अब आप बताओ ये 28 से 30,000। नहीं कपीश जी, आप मेरे सवाल का ही जवाब नहीं दे रहे, और वही शायद सबसे बड़ा डर है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस टुमारो इज द इंडिया अलायंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलरेडी क्रिएटिंग अ नैरेटिव कि डेमोक्रेसी खतरे में है, सर पर कफन बांध लीजिए, आंदोलन की तैयारी कर लीजिए। Apologies only for want of time, Charu and Kapish ji, but thank you so much for speaking to us, and we really hope that our viewers would have understood where is this battle heading towards. It's time for us also to quickly head into a break. On the other side, back with more coverage.